Hello everyone, and this is the third lecture, Differential Calculus. And today we'll be having a look at a important topic, which is Leibniz theorem for nth derivative of product of two functions. This is an important topic, and to study this only we have spent two lectures in order to create a background for this topic so that you can understand it well, because this is also basically for the nth derivative, and we have done at least some question on nth derivative so far. So you must have heard about Leibniz rule in class 12th, that was for the derivative of integral, but now it's a Leibniz theorem. So to start with, you must have done this d by dx of uv, where u and v both are the functions of x. So what we do, first function as it is, derivative of second function v1 plus second function as it is, derivative of first function. This was a simple thing, but don't forget, this was only the first derivative, d by dx. If we want to find the second derivative, third derivative, fourth derivative, nth derivative, then this theorem will help us. I think as far as engineering is concerned, only the formula part and the application is there. But the proof of this theorem is with the help of mathematical induction, which you can do. We will come to that later on as a supplementary portion. So look at this theorem. It says, I'm not writing the statement, let's write that the modified statement. I mean, it's not a formal statement. Let's write this. If u and v are functions of x, then the nth derivative of their product is given by this is the product uv. I have to find its nth derivative. So what we do, first of all, I want to say one thing. Don't remember this formula, just see what is happening. You will use that, because every time you will not need to apply the entire formula, sometime up to 2 steps, sometime up to 3 steps. तो पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, देखना है कि क्या चल रहा है फॉर्मूला में. तो NC0, ठीक है, UN V प्लस NC1 U n-1 V1 प्लस NC2 U n-2 V2. से करते करते हम कहीं पे आएंगे जहां पे NCR होगा U n-r एंड VR. अब ध्यान से देखें तो इस दोनों का सम n के इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये भी एक ध्यान रखने वाला चीज है. और फिर ऐसे करते करते हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, NCN, ठीक है, और यहां पे 1 मिनट, VR, ठीक है, और हम इसका आगे करते जाएंगे अप टू nth डेरिवेटिव. देन वी विल गेट NCN U इंटू VN, ठीक है. तो दिस इज द बेसिक ऑफ द लेबनीज थ्योरम, ठीक है. ध्यान से देखें आप इसको,
दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लेबनीज थ्योरम। क्या हो रहा है यहाँ पे, NC0 से हम जा रहे हैं, ठीक है, NC1 NC2 ये इंक्रीजिंग है, UV इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, किसको U लेना है किसको V। तो U का nth डेरिवेटिव से स्टार्ट करना है, एक एक डेरिवेटिव कम करते जाना है, nth डेरिवेटिव फिर n-1th डेरिवेटिव, n-2 डेरिवेटिव कम करते आना है एक एक, ठीक है। V पहले जो एज इट इज फंक्शन होगा वो लिखना है, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव, फिर उसका थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर हो गया। पहले तो NC0 लिखना है, U का nth डेरिवेटिव V एज इट इज उतार देना है, NC1 फिर U का उससे एक कम डेरिवेटिव V का जो यहां पे होगा उसको डिफरेंशिएट करके यहां लिख देना है, फिर जो यहां होगा उसी को डिफरेंशिएट करके यहां लिख देना है। तो आसान काम होगा ये, ठीक है। अब बात आता है हाउ टू नो विच फंक्शन टू टेक एज U एंड विच फंक्शन टू टेक एज V, ठीक है। कैसे पता करें किसको U मानना है किसको V। ध्यान से देखें, V यहां पे है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव, तो हम V ऐसा फंक्शन लेना चाहेंगे जिसका हो सकता है डेरिवेटिव आगे जाके खत्म हो जाए, ताकि हमें इतना नहीं करना पड़े। क्योंकि लेट्स से हम मान लेते हैं कोई क्वेश्चन, तो let's suppose I will take a question. So I'm taking the question just to show you which function to take as U and V. So this will be question number 1. So find the nth derivative of you have y equals to x cube cos x. Okay, so you have a product of two functions. Now look at the formula. If you take, because in the previous lectures we have already discussed the formula for the nth derivative of cos of ax plus b, so you can find its nth derivative. So it's better to assign that as n, because this will never end, this will go on, but it will be hectic to write in that way. So take that as in the place of u, और x क्यूब को हम v डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि यहां पे x क्यूब एज इट इज आएगा, यहां पे उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आएगा, यहां पे 6x आएगा, यहां पे 6 आएगा कहीं पे थर्ड NC3 के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमें नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि 6 का डेरिवेटिव 0 और 0 का डेरिवेटिव आगे 0 ही होता जाएगा। तो हम बस तीन स्टेप यहाँ पे 4 स्टेप तक रुक जाएंगे, ठीक है। इसीलिए v हम असाइन करेंगे, u असाइन कर रहे हैं cos x को, इसका nth डेरिवेटिव पता है किस फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। तो उस फॉर्मूला का यूज करके हम उसका nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं आराम से। आप या तो रिकॉल करें या तो आप अपने फॉर्मूला शीट पे देखें कि nth डेरिवेटिव ऑफ cos x हमने डिस्कस किया था, हमने sin ax प्लस बी cos ax प्लस बी का डिस्कस किया था। दोनों में ही a पावर n आता है, जो भी फंक्शन हो, साइन हो तो साइन, cos है तो cos, ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 आता है, ठीक है। ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 से अगर रिलेट करना चाहे तो a यहां 1 है, ठीक है, a पावर n तो 1 पावर n ही आएगा। तो सिंपली जो nth डेरिवेटिव हमारे पास यहां पे आएगा वो cos x प्लस n पाई बाई 2 आएगा, ठीक है, cos x प्लस n पाई बाई 2, एंड we are taking as x cube. So let's use this formula. nth derivative will be, देखो क्या करना है, un NC0 is 1, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, नो नीड टू राइट दैट। un लिखें तो cos x प्लस n पाई बाई 2 लिख देते हैं, v को एज इट इज कुछ नहीं करना है इस स्टेप में। NC1
NC1 इज बेसिकली n, और अगर NCR में आपको दिक्कत है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये स्टेटमेंट आई होप आपने ये थ्योरम लिख लिया होगा। NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन तो पता है। लेट्स सपोज हमें 5 फैक्टोरियल लिखना है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है इसको पिछले लेक्चर्स में। तो इसको लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। जितना फैक्टोरियल लिखना है 1 से लेके उतने नंबर तक मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो NC0 1, NC1 n, NCn भी 1 होता है हमारे पास। ठीक है, तो NC0 के जगह हम n लिख लेंगे। और आपको थोड़ा स्टेप्स को कम करना है, वैसे भी बहुत लंबा होता है क्वेश्चंस, आपको पता है। तो ऐसा आपको लिखते ही मतलब पहले स्टेप से ही करना है अगर आपको फास्ट करना है कैलकुलेशन। तो NC1 को हमने लिख दिया n। ठीक है, फॉर्मूला पे देखें, u nth डेरिवेटिव से n माइनस 1 जा रहा है, तो जहां जहां n है वहां वहां n माइनस 1, तो cos x प्लस n माइनस 1 पाई बाई 2। जो यहां है उसका डेरिवेटिव तो 3x स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, NC2 आएगा। NC2 होता है n माइनस 1 बाई 2। कैसे? लेट सपोज आपको 10C3 लिखना है। इसका ट्रिक क्या है, 10 से 3 स्टेप पीछे जाना है, तो 10 9 8, नीचे जो लिया हुआ है उसका फैक्टोरियल 3 2 1। NC2 कोई पूछे, n से 2 स्टेप पीछे, नीचे 2 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, और क्या करना था, यहां n माइनस 1 से n माइनस 2 जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां n माइनस 1 था वहां n माइनस 2 लिख देंगे। cos x प्लस n माइनस 2 पाई बाई 2। इसका डेरिवेटिव, क्योंकि v1 से हम v2 जा रहे हैं तो इसी को तो डिफरेंशिएट किया होगा, तो 6x। यहां पे हम थोड़ा कैलकुलेशंस भी करते जा रहे हैं, ये आ जाएगा 3। और आगे बढ़े तो NC3 आएगा, तो सेम लॉजिक लगा के n माइनस 1 डिवाइड n माइनस 2, 3 स्टेप पीछे गए, और 3 2 1 इज 6। ठीक है, और cos ऑफ x प्लस n माइनस 2 से n माइनस 3। ठीक है, और 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये 6 तो कैंसिल ही हो जाएगा। क्या अगले स्टेप पे जाने की जरूरत है? क्योंकि अगले स्टेप में NC4 तो आएगा, ये चीज n माइनस 4 के साथ तो आएगा, लेकिन 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, पूरा खत्म। आगे के सारे स्टेप्स में वही काम होगा, एक 0 आने के कारण सारा स्टेप नलीफाई हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इतना ही इस क्वेश्चन के लिए था। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैंने कर ही दिया आई थिंक सिंप्लीफाइड, यही सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, वी विल कम टू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, कि और भी इस पे प्रॉब्लम्स हम करें, डाइवर्सिफाइड प्रॉब्लम्स। इस लेक्चर में कुछ हम जनरल प्रॉब्लम्स करते हैं जो इस थ्योरम के बाद आपको करना होता है। प्रॉब्लम्स का तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पे हमें ध्यान देना है, तो कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम करते हैं। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम, क्योंकि एक प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। तो y है हमारे पास cos ऑफ log x। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि x स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1। इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है अभी, ध्यान इस बात पे देना है कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाले, उसके बाद हम उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, तभी तो yn प्लस 2 आएगा। बाकी पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप एक ही चीज को पकड़ के करें, बाकी अपने आप आ जाएगा, ये मैथमेटिक्स है। तो y एक बार और लिख लेते हैं। Here's the starting of our solution, y equals to cos of log x। ठीक है, y1 निकालते हैं, cos का होता है माइनस साइन, log x चेन रूल का यूज करेंगे तो log x का 1/x। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगा। इस x को इधर ले आते हैं, x y1 इक्वल्स टू माइनस साइन log x। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, x एज इट इज प्रोडक्ट रूल लगेगा इस साइड में, y1 का y2
प्लस y1 एज इट इज, x का 1 नहीं लिख रहे उसको, साइन का cos तो माइनस कॉस log x, अगेन log x का 1/x, फिर से वही बात, इस x को इधर ले आए, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू माइनस कॉस लॉग x। क्या हुआ, ये माइनस कॉस लॉग x तो हमारा माइनस ऑफ y है, तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, माइनस ऑफ y है इधर आएगा तो प्लस ऑफ y इक्वल्स टू 0। सब कुछ LHS में ले आए। अब इसको लिखेंगे हम एक लाइन लिखेंगे, differentiating n times with respect to x using our Leibniz theorem। आई होप आपने लेबनीज रूल का बहुत बार इस्तेमाल किया होगा, लिमिट्स के साथ प्रॉब्लम्स किए होंगे उस पर। तो लेकिन ये लेबनीज थ्योरम है, तो लेबनीज के साथ आप आई होप 1-2 साल से जुड़े होंगे। डिफरेंशिएटिंग एन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम, तो इसमें लगेगा लेबनीज थ्योरम क्योंकि एक्स स्क्वायर और y2 का प्रोडक्ट है, इसमें भी लगेगा। ये तो सिंपली हम y का n डेरिवेटिव yn लिखते ही हैं, तो पहले 2 टर्म में लेबनीज रूल लगाना, लेबनीज थ्योरम लगाना है, तो इसमें लगाते हैं। क्या फॉर्मूला मैं याद कर रहा हूं? नहीं, इसमें फॉर्मूला अनलाइक n डेरिवेटिव में भी हमें कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ता था, यहाँ फॉर्मूला नहीं याद करना क्योंकि यहाँ NC0 से स्टार्ट करेंगे। NC0 होता है 1, आई एम फोकसिंग ऑन दिस फर्स्ट। NC0 होता है 1, नहीं लिखेंगे उसको। y2 इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा yn प्लस 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर को पता था, एज इट इज पटकना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है इसके साथ। NC1 n होता है, ये भी चीज हमें इसी स्टेप में लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, एक इसका डेरिवेटिव कम, तो n प्लस 2 से n प्लस 1 कर देंगे, जो यहाँ लिखा है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, 2x आ जाएगा। अब क्या करना है, NC2 n माइनस 1/2, ठीक है, 2, ठीक है। इसमें एक कम कर देंगे तो yn बन जाएगा, ठीक है। 2x का डेरिवेटिव होता है 2, ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। क्या अगला लिखने की जरूरत है, NC3 आएगा, ठीक है, आएगा, yn माइनस 1 भी आएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो क्यों लिखे हम उसको। तो ये हो गया पहले का, बस इसका सिर्फ हुआ है। अभी हमें xy1 का भी करना है तो कर देते हैं, xy1 तो NC0 मतलब 1, y1 का yn प्लस 1, एक्स स्क्वायर एज इट इज रखना है, NC1 होता है n, इसको एक कम कर दो तो yn, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब क्या अगला करने की जरूरत है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो होता है 0, अगला स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है। y का डेरिवेटिव, इस y का डेरिवेटिव yn, बस सभी कॉमन टर्म्स को कलेक्ट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। yn प्लस 2 तो अकेला रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स yn प्लस 2, yn प्लस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो yn प्लस 1 के साथ 2nx प्लस x, ठीक है। और yn के साथ कौन कौन है, n स्क्वायर माइनस n यहाँ से, n यहाँ से, 1 यहाँ से, ठीक है, इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस x को बाहर खींच ले, एक्स yn प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस ये कैंसिल कर दें, yn के साथ n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक गलती हो गया था, यहाँ पे yn होगा, ऐसे ही होगा हर एक क्वेश्चंस में, आपको यहाँ पे yn ही देखने को मिलेगा। तो बस ये था हमारा कहानी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, बेसिक था, कुछ याद करने की जरूरत नहीं थी। 12th क्लास का डेरिवेटिव तो आपको आता ही है। यहाँ मैंने बताया कि थ्योरम में तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पूरा तो लिखना नहीं है। वैसे भी आप एक तरह का जनरल टर्म अपने दिमाग में रखें, आगे बढ़ते आएंगे तो
एक का कम होते जाएगा, एक का बढ़ता जाएगा। NC1 NC2 NC3 के साथ डील करना आपको आता ही है। कुछ और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। हो सकता है आपको ये प्रूव दैट करने वाला सेगमेंट नहीं दिया हो, कुछ स्टेटमेंट लिखा हो यहाँ पे, मतलब यहाँ तक आपको पहुंचना होगा, ये आपको बोल देंगे। हो सकता है ये नहीं लिखा हो, कभी कभी ये लिखा हो। ये लिखा होता तो हमें एक आइडिया मिल जाता है, नहीं भी लिखा हो फिर भी तो आपको एक जनरल आइडिया लेके चलना ही होगा। यहाँ पे देखें, इसको आपने देखा होगा बहुत बार, इस फंक्शन को log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई जनरल चीज़ तो नहीं है, लेकिन बहुत बार आपने देखा ही होगा। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो y1 अगर निकाले तो log का होता है 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का खासियत है कि देखने में अभी बहुत ही खतरनाक लग रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है। तो log का हमने कर दिया, अंदर घुसते हैं तो x का 1, अंडर रूट फंक्शन का 1 अपॉन 2 अंडर रूट फंक्शन, अंदर घुसेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ये कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये कैंसिल हो गया। y1 है हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बस, और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट तो नहीं पहुँचे, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर्स आएगा तो आपको करके दिखाना ही होगा। अच्छा, क्या एक बार और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? इसको इधर ले आए, y1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये 1 हालांकि कुछ खास मतलब नहीं रखता, लेकिन अभी तक तो ये जीवित है, आगे भले ही ये 0 बन जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल, ठीक है। डिफ्रेंशिएट आप लिख भी सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम यहाँ से। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका पहले तो ये स्क्वायर फंक्शन है तो 2 सामने आएगा, y1 एज इट इज, क्योंकि 2 सामने आएगा, y1 का पावर 2 माइनस 1 विच इज 1, तो यहाँ बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है। अंदर घुसेंगे y1 मिलेगा, y1 का y2 प्लस y1 का स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है। वी कैन सेंड दिस 2y1 आउट, 2y1 को फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं 0 के साथ। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पावर 1 लिखा हुआ ध्यान से, तो 2y1 को हमने फेंक दिया, 2y1 को हमने फेंक दिया, तो इधर y2 बचा, इधर y1 इंटू एक्स बचा इक्वल्स टू 0। यहां से हम बोलेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग एनी टाइम्स, डायरेक्टली अब लिख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x with the help of Leibniz theorem, Leibniz, and this is theorem. Okay, I think this is clear. अब पता ही होगा क्या होगा, इसको जरूरत है लेबनीज थ्योरम की और इसको जरूरत है, दो ही टर्म तो है हमारे पास, तो इस पे यूज करते हैं। NC0 इज 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज पटक देंगे, y2 को yn प्लस 2, NC1 इज n, एक कम तो yn प्लस 1, इसका 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। आगे बढ़ेंगे, NC2 nn माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, yn हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, आगे करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस, बस यही सिंप्लीफाइड वर्जन है, 2 से 2 तो हमने कैंसिल ही कर दिया। अच्छा, इसमें NC0 इज 1, y1 को n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो yn प्लस 1, x एज इट इज, NC1 इज n। अब आपका स्पीड बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशंस पता चलते जाएंगे। NC1 को हमने n लिख दिया, ठीक है, इसको yn प्लस 1 से एक कम मतलब n, x का डेरिवेटिव 1, आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0। क्या कुछ गलती कर दिया हमने? नहीं, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म, ठीक है, इक्वल्स टू 0। कलेक्ट करते टर्म्स को,
1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ वाई एन प्लस 2 तो आएगा ही, और वाई एन प्लस 1 के साथ क्या क्या आएगा, 2nx प्लस एक्स, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में भी आया था, और वाई एन के साथ क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, यहाँ देख ले पिछले स्टेप में ये कैंसिल हो गया, प्लस वाई एन प्लस 1, बाहर कर ले एक्स को, 2n प्लस 1 आ जाएगा, वाई एन के साथ एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बस हो गया, ये प्रूफ करना था, ध्यान से देख ले। जी हाँ, यही प्रूफ करना था। तो मज़ा आया होगा आई थिंक, अब आपको क्वेश्चंस करने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि छोटे छोटे बात, NC1 को n लिख दे, NC2 को n(n-1/2) लिख दे, वो 2 भी कैंसिल ही हो रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो और आपको फॉर्मूला भी कुछ याद करना ही नहीं पड़ा अभी तक, तो अभी अच्छा लग रहा होगा। आगे क्वेश्चंस और करते हैं तो कि और भी आपका पकड़ बन जाए इस पे, ताकि और अच्छे क्वेश्चंस कर पाए। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे हम एक एक फंक्शन उठा रहे हैं, उस पर प्रूफ कर रहे हैं। तो अगेन वाई एन प्लस 2, यहाँ जो दिखे वाई एन प्लस 2 मतलब 2 टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट करना ही होगा। तो एक बार करे तो ई पावर कुछ भी हो तो ई पावर उसका वही होगा, अंदर घुसेंगे m साइन इनवर्स एक्स है, उसका m एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लाना होगा तभी मजा आएगा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू ई पावर m साइन इनवर्स एक्स। क्या ये y है तो इसको लिख देते हैं y, √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू y, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट रूल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका 2y1, y1 का y2 किया होगा आपने पिछले क्वेश्चन में इसको। ठीक है, प्लस y1 का स्क्वायर एज इट इज, इसका -2x इक्वल्स टू 2y और y का y1। क्या फिर से वही काम हो रहा है, 2y1 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 हटा दे दोनों तरफ से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसके साथ y2 प्लस एक y1 तो गया, 2 भी गया, तो माइनस साइन आएगा y1 इंटू एक्स, और 2y1 गया इक्वल्स टू y आएगा यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू लेबनीज थ्योरम, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x यूजिंग लेबनीज थ्योरम, यूजिंग LEIBNITZ थ्योरम। ठीक है, तो इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसका तो yn ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज NC01 होता है, और yn प्लस 2, NC1 होता है n, yn प्लस 1 हो जाएगा, इसका -2x हो जाएगा, ये माइनस साइन यहाँ दिखना चाहिए, दिख जाएगा अगले स्टेप में सिंप्लीफिकेशन के बाद। अच्छा, आगे n(n-1/2) yn -2, आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि -2 का डेरिवेटिव 0। इस पे आते हैं, माइनस साइन बाहर रख लेते हैं कुछ देर के लिए, yn प्लस 1 हो जाएगा, x एज इट इज, NC1 होता है n, yn हो जाएगा x का 1, आगे करने की जरूरत शायद नहीं है, और y का तो yn हो गई। बस अब सिंप्लीफिकेशन बच गया। हमें पता है yn प्लस 2 का साथ कोई नहीं दे रहा है, तो यहाँ इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते हैं। उसके बाद ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो -2n इंटू yn प्लस 1 इंटू एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, n(n-1) इंटू yn लिख देंगे। ठीक है, माइनस yn प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n टाइम्स yn माइनस yn इक्वल्स टू 0। 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, आपका नज़र यहाँ पे भी रहना चाहिए क्योंकि उस हिसाब से आपका स्पीड बढ़ेगा। और हम माइनस ऑफ yn प्लस 1 अगर कॉमन ले लें तो 2n यहाँ से, और माइनस ऑफ yn प्लस 1 कॉमन लिया तो x यहाँ से, 2nx यहाँ से और x यहाँ से, तो डायरेक्टली उसको 2n प्लस 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा
वाई एन कॉमन ले लें तो वाई एन कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, तीनों में माइनस साइन है तो माइनस वाई एन कॉमन ले लें। एन स्क्वायर माइनस एन, माइनस वाई एन कॉमन ले लिया तो प्लस एन प्लस वन हो जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू जीरो आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ की ओर देखें तो सब कुछ ठीक लग रहा है। एम स्क्वायर कहाँ गायब हो गया, यहाँ पे एम था, ठीक है हमने रखा, ओ यहाँ पे एम फिर भूल गए हम, यहाँ पे भूल गए, यहाँ पे उसके साथ आएगा ही। अच्छा यहाँ हमने स्क्वायरिंग किया तो एम के साथ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एम आएगा, एम स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पे एम स्क्वायर आएगा, बच सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एम स्क्वायर आएगा, वाई एन किधर गया, वाई एन यहाँ है, उसके साथ एम स्क्वायर, तो जो वन था वो बेसिकली एम स्क्वायर है। ठीक है, तो ठीक है, अब एम एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आ ही गया हमारे पास, तो एक बार और लिख लेते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए। वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस वाई एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन एक्स माइनस वाई एन एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। दिस इज आवर प्रूफ। ध्यान से देख ले, हमने गलती करके भी दिखाया या फिर हो गया होगा गलती जिसके कारण आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन इस पे ध्यान रहे ना, प्रूव दैट क्या करना है, वहां तक तो हमें पहुंचना ही है। अगर क्वेश्चन सही है तो वहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा और अपने प्रोसेस पे विश्वास होना चाहिए। कुछ मिस हो सकता है, कहीं पे प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन आंसर तक पहुंचना ही पड़ेगा। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एक्स है हमारे पास tan ऑफ log y, ठीक है, तो हमें बताना है कि प्रूफ करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस वन प्लस टू एन एक्स माइनस वन इंटू वाई एन प्लस एन एन माइनस वन, ये बोल के कुछ फायदा नहीं है। यहां पे हमारे पास x है इंडिपेंडेंट, y नहीं है, तो क्या हम y ला सकते हैं इंडिपेंडेंट, क्योंकि उसका तो जरूरत होगा। यहां से भी कर सकते हैं लेकिन उतना मजा नहीं आएगा। तो पहला बात तो इसको अकेला करते हैं, तो tan इनवर्स, tan को उधर फेंक देते हैं, तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू log y। ठीक है, अब ये बेसिकली हमारे पास ऐसा लिख दिया आपको, इसको इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ये बेस e है, सब कुछ को मतलब log को उधर ले आए तो y इधर अकेला रह जाएगा, e पावर tan इनवर्स x बच जाएगा। ठीक है, तो y के फॉर्म में हमें मिल गया। तो एक बार डिफरेंशिएट ही करें क्योंकि y n प्लस टू तो दिख नहीं रहा है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दें, e पावर tan इनवर्स x तो हो ही जाएगा, अंदर घुसेंगे तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस वाले को उधर फेंक दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल्स टू ई पावर tan इनवर्स x। या ई पावर tan इनवर्स x क्या है बेसिकली, ई पावर tan इनवर्स x y ही तो है हमारा। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल्स टू वाई, बस डिफ्रेंशिएटिंग एनी टाइम्स with respect to x using लेबनीज थ्योरम, कहीं पे रूल में बोल सकता हूं गलती से, लेबनीज थ्योरम। ठीक है, तो कर देते हैं डिफ्रेंशिएट, तो 1 प्लस एन सी जीरो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या बोलेंगे बार बार, तो अगर आपको वैल्यूज नहीं याद होगा तो याद हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास है, बार बार क्योंकि कुछ नॉइज आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, तो उसके कारण बार बार वीडियो रोकना पड़ रहा है, उसके लिए दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वाई एन प्लस वन प्लस एन सी वन होता है एन, वाई एन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, प्लस एन सी वन तो हो गया एन सी टू, मतलब एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, एन इंटू एन माइनस वन
डिवाइडेड बाई 2, इसका हो जाएगा वाई एन माइनस 1, इसका हो जाएगा 2 जो कि इसके साथ कैंसिल, आगे तो करना नहीं है, और y का वाई एन, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 1, और वाई एन के साथ कौन कौन है इस बार, 2nx है यहाँ से, और -1 आएगा उधर से, ठीक है। अच्छा, और n माइनस 1 के साथ वाई एन माइनस 1 है, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कर दिया समाप्त हमने, और कर लेते हैं, और कुछ करके देख लेते क्वेश्चंस। Even though I wanted to add some more question plus because of practice, but let this be the last question of this particular session. और कुछ questions होगा, वैसे तो कोई अभी वीडियो देखेगा ही नहीं, जब कभी भी आप देखें तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट इस पोर्शन से रिलेटेड लिख सकते हैं। अगर अच्छा डाउट होगा, हालांकि हर एक डाउट अच्छा ही होता है, तो उसका हम वीडियो अलग से बना लेंगे इंडिविजुअली, 1 क्वेश्चन पर वीडियो। लेकिन और क्वेश्चन तो हम हो सकता है 1 लेक्चर 2 लेक्चर लेंगे ही, क्योंकि इसको और क्वेश्चंस करके देखेंगे और डिफरेंट वैरायटी का। इस लेक्चर के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू साइन ऑफ a साइन इनवर्स x। हालांकि ये मुझे फर्स्ट क्वेश्चन लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तक तो 12th का पोर्शन है, और फिर डिफ्रेंशिएट करना था तो पता चलता कि लेबनीज थ्योरम का कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन ठीक है, अब आपको कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा, तो आसान क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। तो y ये है, पहले तो हमें यहाँ तक पहुँचना है, फिर डिफ्रेंशिएट करना है n टाइम्स यूजिंग द लेबनीज थ्योरम। तो पहले तो एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और नॉर्मल कन्वेंशन पे आ जाते हैं, मतलब y1 नहीं लिखते हैं, dy बाई डी एक्स लिखते हैं, वैसे करके, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन का होता है cos a साइन इनवर्स x, अंदर जाएंगे a एज इट इज, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जाएगा इधर, ठीक है, dy बाई डी एक्स के साथ cos के साथ हमारे पास a साइन इनवर्स x, साथ में a बचेगा, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर कर दे, बोथ साइड कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a cos स्क्वायर a साइन इनवर्स x। अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि cos स्क्वायर है, अगर y के फॉर्मेट में होता, मतलब साइन होता, तो कुछ हम कर सकते थे, इसको y लिख देते, तो ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a, cos स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर a साइन इनवर्स x, ठीक है। तो अब तो ठीक लग रहा होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर a, 1 माइनस दिस इज नथिंग बट y स्क्वायर, y तो यही है। अच्छा, एक और बार डिफरेंशिएट तो करना ही होगा, जैसा कि ऊपर दिख रहा है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, कर देते हैं प्रोडक्ट रूल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 सामने आया, dy बाई डी एक्स का d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको एज इट इज रहने देते हैं, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, इधर a इंटू 1 का तो 0 होगा, और a वाई स्क्वायर का -2ay, और साथ में dy बाई डी एक्स, ठीक है। क्या कुछ कैंसिल कर सकते हैं हम दोनों साइड से, आई थिंक 2 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स हर टर्म में से बाहर निकाला जा सकता है, कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पोर्शन कैंसिल, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इसमें से एक गया तो माइनस ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से भी 2 गया, इसको इधर ले आए तो प्लस ए वाई इक्वल्स टू आई थिंक 0, स्क्वायर किया था तो ए स्क्वायर बनना चाहिए था, ये मुझे यहाँ देख के पता चला है, यहाँ गलती है। तो कहाँ स्क्वायर किया था, इसके बाद ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और कहीं पे कुछ गलती, ये चाह रहे हैं कि हम इसी टर्म को इधर रखें, बाकी को उधर, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी2y बाई डी एक्स स्क्वायर
इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस ए स्क्वायर वाई। बस आ गया, जो वो चाहते थे वो हमने कर दिया यहाँ तक प्रूफ। तो शायद कुछ मार्क्स आपको यहाँ तक मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं देन डिफरेंशिएट एन टाइम्स यूजिंग लेबनिज थ्योरम। तो यूजिंग, सबसे पहले तो इसको नॉर्मल कन्वेंशन में लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इक्वल्स टू एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि y का तो वाई एन हो ही जाएगा बेसिकली, इसमें और इसमें लाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर वाई। नाउ डिफ्रेंशिएट n टाइम्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम विथ रिस्पेक्ट टू x तो है ही, लिख सकते हैं आप उसको भी। अच्छा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एन सी जीरो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू का वाई एन प्लस टू। आप तो इसमें हाथ आपका सेट हो गया होगा, ठीक है। एन सी वन मतलब एन, वाई एन प्लस वन, इसका माइनस टू एक्स, एन एन माइनस वन बाई टू एन एन। आप तो ये भी सोच रहे होंगे कि नीचे टू भी क्यों लिखें, क्योंकि इसका तो माइनस टू का टू से कैंसिल ही हो जाएगा, फिर भी लिख देते हैं। ये वाई एन हो जाएगा और ये माइनस टू जो कि इससे के साथ कैंसिल। इस वाले पे आते हैं, माइनस साइन बाहर रख लेते हैं, एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन टाइम्स वाई एन हो जाएगा, एक्स का वन आगे करने की तो ज़रूरत नहीं है, इसका माइनस ए स्क्वायर वाई एन। बस सिंप्लीफिकेशन बच जाता है यहाँ से, वही थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है। तो उसके लिए आप नज़र नहीं रख सकते इस बार, क्योंकि उन्होंने गिवन कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो वाई एन प्लस टू क्या आपको एक ही जगह दिख रहा है, तो यहाँ तो वही होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, ठीक है। वाई एन प्लस वन कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक जगह और यहाँ एक जगह। तो वाई एन प्लस वन अगर ले कॉमन, क्या दोनों टर्म्स में माइनस साइन है, तो माइनस ऑफ वाई एन प्लस वन कॉमन ले लेते हैं। माइनस ऑफ वाई एन प्लस वन ले लिया कॉमन, तो यहाँ से हमारे पास माइनस ऑफ वाई एन प्लस वन कॉमन ले लिया, तो 2nx और प्लस एक्स, तो 2n प्लस वन एक्स जो कि हम लिखते आ रहे हैं। अच्छा, वाई एन के साथ एन स्क्वायर माइनस एन यहाँ से, माइनस वन यहाँ से, प्लस ए स्क्वायर उधर से, तो वाई एन के साथ एन स्क्वायर माइनस एन, और फिर हमें एन मिला था, आप अपने नोटबुक में देख सकते हैं। और RHS में जो ए स्क्वायर के साथ वाई एन था उसको इधर ले आए, तो प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस वाई एन प्लस वन, 2n प्लस वन इंटू एक्स, ये कैंसिल हो गया, प्लस वाई एन टाइम्स एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ओके, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ वाई एन प्लस टू माइनस वाई एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन एक्स, वाई एन के साथ एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक बार और चेक कर लेते हैं, हमारे पास ये जो माइनस साइन था इसको शायद हमने मिस कर दिया, और शायद इस माइनस साइन को भी मिस कर दिया। तो ऐसा करते हैं कि इसको ध्यान में रखते हैं, तो एन स्क्वायर या फिर हम माइनस वाई एन ही कॉमन ले लेते हैं। इस दोनों स्टेप्स को हटा देते, फिर से लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, पहला दो टर्म ठीक है, माइनस वाई एन प्लस वन, 2n प्लस वन एक्स प्लस वाई एन, माइनस वाई एन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस वाई एन लेंगे तो कॉमन ले लिया, एन स्क्वायर माइनस एन यहाँ से, ठीक है। माइनस वाई एन कॉमन ले लिया तो एन यहाँ से, और पूरा टर्म इधर आएगा तो ए स्क्वायर, ठीक है, और वाई एन, ठीक है। तो हमारे पास माइनस ऑफ ये वाला टर्म जब इधर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई एन, लेकिन हमने तो लिया है माइनस वाई एन कॉमन, तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास,
इक्वल्स टू 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस वाई एन प्लस 1 2n प्लस 1 एक्स माइनस वाई एन टाइम्स एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये था लेबनीज थ्योरम का शुरुआत। आगे और क्वेश्चंस चलता रहेगा और आप अपने साइड पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, अनलिमिटेड जितना टाइम हो आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।